I praise God for the privilege and honor God has given us to come to His feet once again to listen to Him. एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उनको आदर और महिमा देते हैं कि एक बार उनके चरणों में आकर फिर से हमें सीखने का अवसर दिया। Before we proceed further, shall we look to the Lord in prayer? इससे पहले कि हम आगे जाएं, आइए हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। We thank you, dear Lord, for the privilege you have given us to come to your feet. परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि आपके चरणों के पास फिर आ सके। We pray that you would speak to us and open our eyes of understanding. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातें करें और हमारी समझ की आंखों को खोलें। We pray for your blessings upon us and anointing of the Holy Spirit. प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीषित करें और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, so that the meditation of your word would be a rich blessing to us and it would edify us. ताकि आपके वचन का मनन करना हमारे लिए उन्नति का कारण हो जाए और हमें उसके द्वारा बढ़ोतरी मिले। In Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हम मांग लेते हैं। In the previous class, we have studied the book of Lamentations. Yeah. यस अंकल, और पिछली क्लास में हमने विलाप गीत के विषय में अध्ययन किया। And today we are supposed to begin the study on the book of Daniel. और हमें आज दानियल की किताब हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। So Daniel was prophesying from the palace of Babylon, whereas Ezekiel was doing his ministry while staying among the people of God in the captivity of Babylon. और बेबीलोन की गुलामी के समय में दानियल राजमहल में था और वो भी भविष्यवाणी कर रहा था, और यहेजकेल भी उसी दौरान परमेश्वर के लोगों के मध्य में थे गुलामी में, और वो भी भविष्यवाणी कर रहे थे। In the previous class, we have studied that the captivity was taken place in 3 phases. और हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था कि ये जो गुलामी में जाने की अवस्था थी, ये तीन क्रम में हुई थी। So they were there, the people of God, the people of Judah was there at Babylon for about 70 years as slaves. और हमने देखा कि किस प्रकार यहूदा के लोग लगभग 70 वर्ष की गुलामी में बेबीलोन के अधीन चले गए। So Jeremiah was doing his ministry from Jerusalem. और उस समय यरूशलेम में यिर्मयाह सेवकाई कर रहे थे। So BC 606, first captivity was taken place, during which time Daniel and his friends were taken as captives to Babylon. और हमने जैसा कि देखा कि जो बेबीलोन की गुलामी में जो यहूदा के लोग गए थे वो 3 क्रम में हुआ था, और सबसे पहले जो क्रम में था वो लगभग 606 ईसा पूर्व हुआ था वो घटना, और जिस समय दानियल और उसके साथ ही पाए जाते थे। So the king of Babylon, Nebuchadnezzar, attacked Jerusalem again second time in BC 597, during which time Ezekiel and few people were carried away as captives. और दूसरी बार आक्रमण जो राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर किया वो 597 ईसा पूर्व किया, और उस समय यहेजकेल और उनके कुछ साथी गुलामी में साथ में चले गए। The third time, again, the king of Babylon, Nebuchadnezzar, attacked Judah and burned Jerusalem, destroyed Jerusalem, and the temple of God was destroyed, and the all the things of the heritage of the people of God was destroyed. और तीसरा आक्रमण जो हुआ था वो ईसा पूर्व 586 में हुआ, जिसमें राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल को नष्ट कर दिया, जला दिया, और वहां के मंदिर को
नष्ट कर दिया, और जितनी भी जो संपत्ति थी इजराइलों की, यहूदियों की, वह सब नष्ट हो गई। The difference between the kings of Assyrian and the kings of Babylonian is very much different. और जो अंतर है हम देखें बेबीलोन के जो राजा में और असूरियों के राजाओं में, वो थोड़ा कुछ उनमें अंतर है। The kings of Assyrians, they destroy mercilessly and they kill the people and they don't bother about the souls of the people. और असूरियन जो थे वे लोगों को नाश करते थे और लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार करते थे, और लोगों के नाश होने पर उनमें उनमें कोई भी दया की भावना नहीं थी। But whereas the kings of Babylon were a little different, they carried away their enemies into their land and they have given such allotted a particular area to dwell. And although they were captives, but they used to take care of them is a by providing them in colonies. परंतु बेबीलोन के राजा के जो जीवन में अलग प्रकार की विचार थे, और उन्होंने गुलामों के लिए अलग से क्षेत्र भी दे के रखा था, और उन्हें अलग से उन्होंने संरक्षण और सुविधाएं भी दे रखी थी। So we as the children of God should not forget that God is sovereign and everything that happens maybe on earth or in heaven, everything should happen or must happen only under the complete control of the sovereign God. और हम ये बात हमेशा जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग में जो कुछ भी होता है वो इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नियंत्रण में होता है। We read in Matthew's Gospel, chapter 10, even our hair is counted. Not one hair will fall on the ground. Not one bird in the wilderness can fall on the ground without the permission of God. जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि हमारे सिर का एक बाल भी, और यूं जंगल की एक चिड़िया भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं गिर सकती। So we also have studied in the previous classes that God never punishes anyone without giving sufficient warning and without giving sufficient time to rectification. और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि परमेश्वर एक मनुष्य को या एक लोगों को जब तक पर्याप्त चेतावनी नहीं देते और पर्याप्त समय उन्हें सुधरने का नहीं देते, वे उनको दंडित नहीं करते। We also have seen in the previous classes that before Christ 931, from the very division of northern kingdom and southern kingdom up to the fall of 722 BC, the people of Israel were idolaters, they were adulterous, and they were wicked people. और हम देखते हैं कि लगभग 931 ईसा पूर्व से, जब से दक्षिणी और उत्तरी राज्य का विभाजन हुआ था, वहां से लेकर 750 ईसा पूर्व तक जितने भी इजरायली लोग थे वो मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचारी और दुष्ट किस्म के थे। God sent his prophets, his servants, and warned them n number of times, but nobody heeded the voice of God. Nobody returned to the Lord, but they persecuted the prophets of God. They killed the prophets of God, and they rebelled against God. और परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को बार बार भेजा, उन्होंने चेतावनी दिया, और लोगों ने उनकी चेतावनी को नहीं सुना, परंतु उनके भविष्यवक्ताओं को भी सताया, उन्हें मार डाला और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। The Bible says that God is a God of righteous and justice, and God is holy, and God had no option but to execute his judgment. और हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, धर्मी, न्यायी और पवित्र परमेश्वर है, और वो न्याय करता ही है। न्याय के लिए वो कोई और विकल्प नहीं रखता है। So for that reason, he removed the wall of defense, he removed the wall of protection around his people, and enemies attacked them and destroyed them. That's what happened in 722 BC through the king of Assyria.
और हम जानते हैं कि परमेश्वर न्याय के समय में क्या करते हैं, मनुष्य की सुरक्षा की दीवार जो होती है उसे वो गिरा देते हैं। और वो सुरक्षा की दीवार जब हट जाती है तो शत्रु उन पर आक्रमण कर देते हैं। जैसा कि हम 722 ईसा पूर्व में असूरियन की आक्रमण को देखते हैं। At least the people of Judah should learn the lessons what had happened to the people of Israel, the way how God executed his judgment. People of Judah did not rectify themselves. They rebelled against God as well. और हम देखते हैं कि यहूदा के लोगों को सीख जाना था इजराइल के लोगों से कि इजराइलियों का कैसे न्याय हुआ था। परंतु ये लोग इजराइलों को देखकर भी नहीं सुधरे और इन्होंने भी वही गलतियां की। Because God made a covenant with Abraham, God made covenant with his servant David, and so God wanted to keep a lamp for the line of Judah. And so God spared the people of Judah, and God did not allow the king of Babylon to totally destroy them. But there was a remnant taken away to the Babylon as captives. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अब्राहम से और दाऊद से वाचा बांधी थी, इसके कारण परमेश्वर ने एक दीपक को हमेशा यहूदा के घराने पर रखने के लिए काम किया। और इसीलिए यहूदा के कुछ लोगों को बचा के रखा और बाबिलोन के राजा के द्वारा भी सभी को नाश नहीं किया गया, परंतु यहूदा के कुछ लोगों को बचाया गया। We should remember very well that the people of Judah were no better than the people of Israel, but only the mercy of God, the grace of God spared them, and so they were not destroyed, and they were sustained even in the midst of persecution by the enemy king of the king of Babylon, Nebuchadnezzar. और हम देखते हैं कि जो यहूदा के लोग थे वो इसराइल के लोगों से ज्यादा अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी ये परमेश्वर की दया और करुणा थी कि वे नाश नहीं हुए। और वो जो सताए गए उनके शत्रुओं के द्वारा, बेबीलोन के द्वारा, वो नष्ट नहीं हुए, परंतु वे बचाए गए। We also have seen in the days past, especially while studying the book of Jeremiah, Jeremiah was prophesying to the people of Judah, saying that you go to Babylon, surrender to the king of Babylon. और जैसा कि हमने यिर्मयाह की किताब को, भविष्यवक्ता की किताब पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को भविष्यवाणी की थी कि तुम बेबीलोन की गुलामी में चले जाओ और बेबीलोन के राजा के सामने समर्पण कर दो। But king of Judah and even the royal elite people of Judah, including many ruling class of Judah, they thought that Jeremiah was a traitor, and he was talking towards the enemy side, and he was not pronouncing any blessings to the people of Judah. Rather, he was siding the enemy king Babylon, Nebuchadnezzar. They thought that Jeremiah was a traitor and he's not no good at all for them. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा के जो राजा थे और उनके जो राजघराने के शासक थे, वे लोग यिर्मयाह के लिए गलत समझ रहे थे। वे लोग सोच रहे थे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता उन्हें धोखा दे रहा है और वो उन्हें आशीष भी नहीं दे रहा है और उन्हें वो शत्रु का पक्ष ले रहा है, बजाय इसके कि उन्हें वो आशीष दे, ऐसा वे सोच रहे थे। But Jeremiah knew that God of the Bible is holy God and God of the nation of Israel and the nation of Judah is holy, righteous, and the God of justice. And so God was executing justice. And so God wanted them to go to Babylon as a part of, the judgment, and nothing more, nothing less. और यिर्मयाह भविष्यवक्ता जानते थे कि बाइबल का परमेश्वर पवित्र है और वो यहूदा और इजराइल के राष्ट्र का भी परमेश्वर है, वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। और वो जरूर न्याय करेगा और उसके न्याय का एक भाग ही था कि यहूदा जो है बेबीलोन की गुलामी में चला गया। So this we should not forget. We should not forget the holy God, the righteous God, the God of justice certainly executes his justice. When we sin against him, when we rebel against him, we have to pay for it. Although God is loving, God is gracious, and God is kind, it does not mean to say that God never punishes. और परमेश्वर धर्मी और न्यायी है
परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करते हैं, और जो पाप और विद्रोह करते हैं उसके विरोध में वो जरूर कीमत चुकाते हैं, और उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है। वो अलग बात है कि परमेश्वर दया और करुणा का भी परमेश्वर है, परंतु वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। But some people, think of God only in terms of God's love, in terms of God's compassion, God's grace, God's mercy, and God's kindness, and whatever would be the lifestyle of the people. They every time expects only blessings from God, never punishment from God. और हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं परमेश्वर प्रेम का, दया का, अनुग्रह का और करुणा का परमेश्वर है। इसलिए कई लोग सोचते हैं, इजरायली लोग की और मनुष्य की, कैसे भी दिनचर्या हम जिए, हमको कैसे भी हम जीवन हो, लेकिन परमेश्वर हमको दया करेगा ही और वो हमको प्रेम करेगा, ऐसा वही सोचते हैं। So, God of the Bible is a moral God. From the beginning of Genesis 1, we have been studying and learning many things about God. और हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक नैतिकता का परमेश्वर है, और वो शुरू से ही हम जब उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं तो वहीं से हम परमेश्वर के एक नैतिक स्वभाव को देखते हैं। So, here in the book of Daniel, we find again how God operates his grace in the midst of his judgment. और दानियेल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने न्याय के मध्य में अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। So, the let me introduce the book of Daniel. Empires influenced by Daniel are Babylonian Empire and Medo-Persian Empire. और दानियल की किताब का अगर हम परिचय देखें तो दानियल के समय में जितने भी शासक थे, जो सम्राट थे, वे लोग उसके द्वारा प्रभावित थे, चाहे वो बेबीलोन के हो या तो फिर मध्य पर्शियन के जो राज शासक थे, वे सब उसे प्रभावित थे। So we have seen that Daniel and his friends were carried away to the kingdom of Babylon in the first attack, maybe in 606 BC. और जैसा कि हमने देखा कि जो दानियल और उसके साथी थे, वो बेबीलोन के प्रथम आक्रमण में ही गुलाम बना लिए गए थे, जो लगभग 606 ईसा पूर्व हुआ था। Perhaps he must be somewhere around 15, 16 years of age. जो लगभग द एज ऑफ दानियल एंड हिज फ्रेंड्स अंकल। Yeah. और उस समय लगभग दानियल और उनके साथियों की जो उम्र थी लगभग 15 या 16 साल रही होगी। So historians say that Daniel, he survived maybe up to 90 years of age. और इतिहासकार बताते हैं कि दानियल लगभग 90 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे थे। So for that reason, he survived all through 70 years of exile. और इसलिए हम जानते हैं कि वो लगभग गुलामी के जो 17 वर्ष थे उस दौरान वो जीवित थे। So that's the reason why he influenced both Babylonian Empire and Medo-Persian Empire. और यही कारण था कि दानियल के द्वारा बेबीलोन के जो शासक थे वे, और साथ ही मध्य पर्शियन के जो शासक थे, वे दोनों प्रभावित थे। Uh, Daniel chapter 1 was written in Hebrew, but whereas Daniel chapter 4 to chapter 7 written in Aramaic and chapter 8 to 12 written in Hebrew. दानियल की किताब उसका पहला अध्याय इब्रानियों भाषा में लिखा गया है। दानियल की किताब 2 अध्याय का 4 से लेकर 7 अध्याय तक अरामिक भाषा में लिखा गया है, और दानियल 8 से लेकर 12 अध्याय तक फिर से इब्रानियों भाषा में लिखा गया है। So it is evident that Daniel wants to uh, give the message of God to both people of Judah who are in Jerusalem, or maybe who are in Babylon, who can understand Hebrew, and he also wants to give the message of God to the people of Babylonian in Aramaic. और हम देखते हैं कि ये इस बात की गवाही दे रहा है कि दानियल ने जो बातें कही हैं और जो भविष्यवाणी की है, वो यहूदा के लोगों को जो यरूशलेम और बेबीलोन में थे, जो इब्रानी भाषा जानते थे, उनको भी लिखा है, और साथ ही जो बेबीलोन के जो लोग थे जो आरामिक भाषा बोलते थे, उनको भी लिखा गया है। Almost all 6 chapters
Daniel wrote in Aramaic language so that the local people of Babylon can also hear what God is saying to them. और लगभग 6 अध्याय जो दानियल ने जो वहाँ की स्थानीय भाषा अरामिक भाषा में लिखी है, इस कारण वहाँ के जो बेबीलोन के लोग थे वे भी उसे समझ पाए होंगे। So the theme, the central keywords of the Bible, of the book of Daniel is Daniel chapter 11 and verse 32, second part. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. और जो स्वर्णिम बिंदु बोलते हैं, जो मुख्य बिंदु है दानी की पुस्तक का, वो 11 अध्याय के 32 वचन का दूसरा भाग है, अंतिम भाग, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर का जो लोग ज्ञान रखेंगे वे हियाव के साथ बांध कर बड़े काम करेंगे। So I have put on the screen, it is of NASB version. Let me read for you NKJV version. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. और जैसा कि सामने जो लिखा हुआ है एनएसवी वर्षन का है, लेकिन अगर न्यू किंग जेम्स वर्षन में हम उसका अनुवाद करें तो वहाँ लिखा है, परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। So in the book of Daniel, we see the people, those who know their God, how they were so strong, how they influenced the people around them in the midst of terrible opposition, in the midst of terrible challenges. और हम देख रहे हैं कि जो इस वचनों के द्वारा कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे लोगों के अंदर में एक बड़ा हिया होगा, और तमाम दबाव के विरोध में और तमाम जो सताव और संकट की परिस्थितियों के मध्य में भी वे लोग बड़े बड़े काम करेंगे। There is a common slogan saying that how we behave determines what we believe. और जैसा कि लोग एक कहावत कहते हैं या एक ज्ञान की बात कही जाती है कि जो हम व्यवहार करते हैं वो ये बताती है कि हम क्या विश्वास करते हैं। Yes, it is true. Our belief system will drive our behavior, and our behavior always depends upon what we believe. हम जो विश्वास करते हैं वो हमारे व्यवहार से दिखता है, और जो कुछ हमारे व्यवहार से दिखता है वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के द्वारा प्रभावित होता है। So, when we believe God, who is supernatural, the very creator of all creation, and one who controls the whole creation, and our behavior should, even if not all times, at least sometimes, will display extraordinary behavior and a behavior, something supernatural things happen. और हम देखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर अलौकिक है और वो सृष्टि करता है और वो सभी चीजों को नियंत्रण करता है, और ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन से भी प्रभावित होने वाली स्थितियां आती है, और वो कभी ना कभी प्रदर्शित इस दुनिया में जरूर होता है हमारे व्यवहार में कि हमारा परमेश्वर अलौकिक और असाधारण परमेश्वर है। Let me give you another example. It is quite normal to understand that dead fish will flow along with the stream of water. और एक उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि जो मरी हुई मछलियां होती है वे नदी के बहाव के तरफ उसके साथ चली जाती है। But live fish even can strive in the in opposition to the stream of water because there is life in it. और जो जिंदा मछली होती है वो जल के प्रवाह के विपरीत तैरती है क्योंकि उनमें जीवन होता है। The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे लोग हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। We will see the people of God how they displayed the majesty of God in their behavior. How they proved God is with them and God is working in and through them in the midst of terrible challenges. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग एक चीज को प्रदर्शित करते हैं अपने व्यवहार से कि उनका परमेश्वर कितना अलौकिक और अद्भुत है, और वो उनके साथ रहता है, उनके मध्य में वास करता है तमाम विपरीत और चुनौती और परिस्थितियों में भी। ये परमेश्वर के लोग अपने व्यवहार से प्रदर्शित करते हैं। The book of Daniel can be divided into two parts.
first 6 chapters, the story of Daniel and his friends, and from 7th to 12th, the end of the book, we find Daniel's visions. दानियल की किताब को अध्ययन के लिए हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले से लेकर 6 अध्याय तक दानियल और उनके मित्रों के बारे में वर्णन है, और दूसरा भाग में 7 अध्याय से 12 अध्याय तक दानियल के दर्शन के बारे में हम देखते हैं। So the book of Daniel is not written in chronological order, and so I have kept it in a chronological order. Please carefully follow as we meditate this book of the Daniel. और जैसा कि हम देखते हैं कि दानियल की किताब जो है वो अपने जो क्रमानुसार नहीं लिखी गई है, इसलिए उसे अध्ययन के लिए हमें क्रमानुसार लिखना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। In the first chapter of book of Daniel, we find the principle of separation, how God keeps his people separate from among the world. और पहले अध्याय में हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक अलगाव करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को संसार से अलग रखने वाला परमेश्वर है। They keep their identity of God. They never compromise with the system of the world. और परमेश्वर अपनी एक पहचान रखने वाला परमेश्वर है, और वो संसार के साथ समझौता करने वाला परमेश्वर नहीं है। Whatever could be the challenging situations or circumstances around them, because they know their God, they won't compromise as far as God's commands and principles are concerned, and they prove that the God is true and God is always true in their life. और चुनौती चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर के जो लोग हैं वे कभी समझौता नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा और सिद्धांत को पालन करते हैं जो बिल्कुल सत्य होती है। In the second chapter, we find king's dream, and God reveals the future of his program, how he is going to involve in the kingdoms on the earth, and how he keeps kings down and kings up according to his will and purpose. और दूसरे अध्याय में हम राजा की जो एक दर्शन था उसको हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने बड़े से एक मूर्ति को देखा था जो कि परमेश्वर की जो कार्य होने वाली थी भविष्य में उसको दिखा रहा था कि किस प्रकार राज्य में परिवर्तन आएगा और अब कुछ राजा उठेंगे गिरेंगे। इन सब घटनाओं को परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में एक दर्शन में राजा को प्रकट किया। In the third chapter, the young the people of God, they found a challenge to submit themselves against the will of God, but they did not compromise, and they again proved that the God whom they believe is God of the universe, and he is a living God. और हम तीसरे अध्याय में देखते हैं जो जो परमेश्वर के जो जवान भक्त लोग थे, जो दानियल और उनके साथी लोग, वे लोग इस बात को प्रमाणित किए कि उनका परमेश्वर विश्व का परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया, परंतु एक बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और आग की भट्टी में जाना भी उन्होंने उसको स्वीकार किया। In the chapter 4, king again gets a dream, and the people in his kingdom could not interpret the dream. And so again, Daniel came to the picture, and God revealed to the king that God is the one who is real sovereign God, and kings on the earth must obey God, otherwise they'll pay for it. और चौथे अध्याय में हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर का फिर से एक दूसरे स्वप्न के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़े पेड़ को देखा था और पूरे बेबीलोन में उसका कोई भी अर्थ नहीं बता पाया, परंतु जो दानियल जो जीवते परमेश्वर का भक्त है उन्होंने ही उस दर्शन का अर्थ बताया। उससे उन्होंने प्रकट किया कि उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो राजाओं के साथ सबके साथ अपनी रीति से व्यवहार कर सकता है और उन्हें उनके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। In the chapter 7, we find the again a dream, a vision of 4 beasts talking about the future kingdoms.
और 7वें अध्याय में हम फिर से देखते हैं जहाँ पे 4 पशुओं का दर्शन है। और ये जो है ये 4 पशुओं का दर्शन भविष्य में आने होने वाली फिर से घटनाओं को दिखाता है। And chapter 8, another vision of the same pattern, uh, ram and goat. और 8वें अध्याय में फिर से हम एक मेढ़े का और एक बकरे का दर्शन हम देखते हैं। And chapter 5, we find how God executes his judgment, how, the kingdom changes according to his timetable. और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसे न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो अपने समय के लेखे के अनुसार न्याय करता है। उसको हम 5वें अध्याय में देखते हैं जहाँ पर दीवाल में लेख लिखा गया था। In the chapter 9, we find the details of the 70 weeks, how God runs his program that was given to his servant Daniel. और 9वें अध्याय में हम 70 सप्ताह के होने वाली घटनाओं को जो परमेश्वर की एक योजना थी उसके टाइम टेबल को हम देखते हैं। In chapter 6, again, the colleagues of Daniel wanted to put him down, and he faces a big challenge, but God was with him. Again, Daniel proved that his God is God who is in full control and who is King of Kings and Lord of Lords. और हम 6वें अध्याय में देखते हैं जब दानियल को परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण सिंहों के वाण में डाल दिया गया और वहां पर भी परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर सच्चा जीवित और सामर्थी परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। And chapter 10 and 11, we find conflicts in the kingdoms and the future. और 10वें और 11वें अध्याय में जो हम देखते हैं वो जो राजाओं के साथ में बड़ा एक परिवर्तन होने वाला था उसके दर्शन को हम देखते हैं। Chapter 12 also talks about the future and the conclusion. और 12वें अध्याय में हम भविष्य को अंतिम समय के भविष्यों को और उसके उपसंहार को देखते हैं। So let me recap the chronology of Daniel's 12 chapters, 1, 2, 3, 4, and then 7, 8. तो हम देखते हैं कि जो समय के अनुसार जो क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें दानियल की किताब को तो शुरू का 4 अध्याय के बाद में 7वें और 8वें अध्याय की घटनाएं आती है। And later chapter 5, and then chapter 9, and then chapter 6, and then chapter 10, 11, 12. Likewise, the chronology runs like this. और उसके बाद 5वें अध्याय की घटना, उसके बाद 9वें अध्याय की घटना, उसके बाद 6वें अध्याय की घटना और अंत में 10वें 11वें और 12वें अध्याय की जो घटनाएं हैं ये जो है जो समय काल के अनुसार जो बीती थी उसके क्रम के अनुसार ये घटनाएं हैं। So let us have a brief thought, because we are doing survey, we are not doing verse by verse Bible study. और चूंकि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं इसलिए एक एक वचन का अध्ययन का समय नहीं है इसलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। So chapter 1 verses 3 and 4. Then the king instructed his servants that they should find some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and the literature of the Chaldeans. और दानियेल एक अध्याय उसके 3 और 4 में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। In our terms, in our understanding, it's something like civil services notification, just like IAS and IFS and IRS.
IFS, things like that. और अगर हम इस घटना को समझें तो समझिए कि जो सिविल सरकारी नौकरियां लगती है जैसे कि आईएएस आईपीएस और इन सारी जो नौकरी लगती है उसी के समान इनके लिए भी एक नौकरी की बात यहाँ पर की गई। But it is a general and common understanding that only locals will be selected for ruling, officers and those who make policies and those who rule the kingdom, but not captives. और जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा ये नियम होता है कि जो भी शासकीय कर्मचारी होते हैं जो कि उसके नीति नियम के आधार पर चुने जाते हैं वे हमेशा स्थानीय लोग होते हैं, परंतु कभी भी गुलामों को वहाँ की शासकीय कर्मचारी के रूप में चुना नहीं जाता। ये बातें हम देखते हैं। The wonder what we don't understand is how God inspires, rather, or God motivates the king of Babylon, Nebuchadnezzar, to recruit royals, young people among the royal families in the midst of captives to serve in his kingdom. और हम देख रहे हैं कि यहाँ कैसा अद्भुत है परमेश्वर का कार्य कि उन्होंने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में काम किया कि वे जो है राजघराने के कर्मचारियों के लिए चुनाव के मध्य में वो गुलाम जो है उन वहां के जवानों को चुन करवाने का अवसर दे रहे हैं। We clearly find the hand of God in this process of selecting uh, top class people in ruling in the administration of the kingdom. और हम यह देख रहे हैं ये सीधा सीधा परमेश्वर का हाथ है कि वो इन उच्च योग्यता वाले लोगों को चुन रहा है जो कि ऐसे बहुत ही उच्च शासकीय पद पे नियुक्त हो सके। Verse 6 says that now from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. और पहले अध्याय के 6 में लिखा है उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नामक यहूदी थे। Here we find at least 4 young men who proved themselves that they are worth to be in the camp of administrators of their local kingdom. और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 जवान जो थे ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो स्थानीय जो प्रशासनीय जो योग्य जो कार्य थी उसके लिए वो योग्य हो रहे थे। These were 4 young men. I wonder, normally what happens is when we are as slaves and in captivity, we normally are down, think that where is God whom we have been believing and serving? Why God allowed all these situations and circumstances? And so they always, normally they're supposed to complain, they're supposed to murmur, they're down, and sometimes don't eat even, willing to die or things like that. और हम देख रहे हैं कि ये 4 जवान लोग कितने सुंदर और योग्य दिख रहे हैं। अगर हम साधारण तरीके से सोचे तो अगर कोई गुलामी में रहने वाले लोग होंगे तो उनकी मानसिकता निचली हो जाती है और वे लोग सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ है और वो सोचते हैं कि हम कैसे विश्वास करें क्योंकि हमें परमेश्वर ने गुलामी में भेज दिया है और यहाँ पे हम कैसे माने कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और ऐसे में लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और बहुत सारे लोग मरने के बारे में भी सोचते हैं। Here we find 4 young people. They knew their God and they learned to live in a given, uh, you know, um, circumstances which are not favor to them. Still, they raised to the occasion. They proved that they are no less than the rulers of the country. और यह 4 जवान जो हैं ये अपने परमेश्वर को अच्छे से जानते थे और तमाम परिस्थितियों के मध्य में भी इन्होंने अपने अनुकूलन को दिखाया और ये लोग कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इस बात को प्रदर्शित किए कि ये वहाँ के जो स्थानीय शासकीय लोगों से भी अच्छे हैं। So, what are the circumstances of this, for this Daniel and his friends? Their country is different, their language is different, their culture is different. They are carried as slaves away from their families.
और हम ये देखते हैं कि जो परिस्थिति कैसे चुनौतीपूर्ण थी जो दानियल और उनके साथियों के लिए क्या क्या अलग थी। उनका तो सबसे पहले देश अलग था, दूसरा उनकी भाषा अलग थी, तीसरा उनकी संस्कृति अलग थी क्योंकि वहां पे अन्य जाति आराधना करने वाले, देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोग थे, और चौथा, वे अपने परिवारों से दूर एक गुलामी की अवस्था में लाए गए थे। Their names are changed. They have no support of any kind. They have no their religious leader or leader from their family. They are young and they were dominated by the confused value system. और पांचवी बात थी कि उनका नाम बदल दिया गया। छठवीं बात थी कि उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं था क्योंकि उनके पास कोई भी धार्मिक अगुवे नहीं थे। और सातवीं बात थी कि वे बहुत ही जवान थे। आठवीं बात थी कि वे लोग एक ऐसे सिस्टम के अधीन चले गए थे, जो उनके अधीन चले गए थे, जो कि बहुत ही शंका से भरी हुई थी। But still, they could win the competitive uh, challenges, and they proved themselves that they can be enlisted in the to work in the kingdom of Babylon. और हम यहाँ देख रहे हैं फिर भी ये जो लोग थे, इतने सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ की जो प्रतियोगिता थी चुनौतीपूर्ण, उसमें वे योग्य बने और वे उस शासकीय प्रशासनिक कार्य में चुने गए। In Hebrew, the meaning for Daniel is God is my judge. But और his दानियल name was changed to Belteshazzar. Belteshazzar means Bel protect the king. और दानियल का जो नाम का अर्थ होता है, उसका इब्रानी भाषा में अर्थ होता है कि परमेश्वर मेरा न्यायी है। परंतु हम देखते हैं कि जब वो बेबीलोन में गए तो उनका नाम बदल दिया गया और उनका नाम बेलशस्सर रख दिया गया। इसका मतलब है कि व्हाट दैट मीन अंकल, बेल मीन्स? Bel is the god of Babylon. ओके, बाल देवता बोल सकते हो, ये क्या? Hananiah in Hebrew, it means Yah has been gracious. Yah means Yahweh. Yahweh has been gracious. अंकल, द गॉड दैट द किंग फिरौन, द बाल इज सेम, इज दैट बेल? Yeah, yeah. ओके अंकल। तो दानियल का जो यहाँ पे नाम बदल के बेलशस्सर रखा गया था, उसका मतलब है कि राजा की है वो बाल रक्षा करता है। और दूसरा नाम था हनन्या, जिसके नाम का अर्थ है कि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। His name was changed to Shadrach. That means the command of Aku. Aku is the goddess of Babylon. और उनका नाम, हनन्या का नाम बदल के सदरक रख दिया गया। और सदरक के नाम का मतलब होता है कि अक्कू की आज्ञा है, जबकि अक्कू जो बेबीलोन के स्थानीय देवता है। Mishael in Hebrew, who is what God is, but his name was changed to Meshach, who is what Aku is. और मिशाइल जो था, उसका जो नाम का जो अर्थ था इब्रानी में कि कौन है और कौन क्या है परमेश्वर, परंतु उसका नाम इन्होंने चेंज करके मेसक रख दिया, जिसका अर्थ है कि अकू जो है वो कौन है और क्या है। Azariah in Hebrew means Yah has helped, but whereas his name is converted to Abednego, means slave of Nego or Nebo, again, the goddesses of Babylon. और अजरिया जो था, उनका नाम फिर बदल दिया गया, और अजरिया के नाम का अर्थ इब्रानियों में था कि परमेश्वर मदद करते हैं, सहायता करते हैं, परंतु उनका नाम बदल के अबेदनगो रख दिया गया। और अबेदनगो का मतलब होता है कि नेगो, नेबो अर्थात वहाँ के स्थानीय देवता के गुलाम। What king of Babylon, Nebuchadnezzar, is saying is they must change their lifestyle, which should fit the kingdom of Babylon. और यहाँ हो ये रहा है कि जो बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर है, वो क्या कर रहा है, इन लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन ला रहे हैं ताकि वे बेबीलोन के राष्ट्र के अनुसार ढल जाएं। Their boss is commanding them, their boss is demanding them to live according to the system, according to the tradition, according to the culture of Babylon.
और उनके जो स्वामी थे, प्रधान थे, उन्होंने इनको आज्ञा दी और एक सिद्धांत दिया कि आप यहाँ के सिस्टम के अनुसार और यहाँ के लोगों की जो संस्कृति के अनुसार आप जीना सीखें। So it is customary in the system that people live according to their name. और जैसा कि वहाँ की जो रीति रिवाज थी वो ये थी कि लोग अपने नाम के अनुरूप जीना है। In another way, what what the king of Babylon, Nebuchadnezzar, is saying is, you may be Hebrews earlier. Now you are no more Hebrews. You are my slave, and I dictate terms how you should behave and how you should live. This is how you have to be. And so their name was changed. और जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो बेबीलोन के राजा जो नबूकदनेस्सर है, वो जान रहे थे कि ये लोग इब्री लोग हैं और इब्रानी भाषा बोलते हैं, परंतु राजा ने उनको कहा कि आप अब गुलाम हैं और आप अब मेरे अनुसार जिएंगे और मेरे सिद्धांतों पर चलेंगे, इसलिए उन्होंने उनके नाम बदल दिए। Normally, only parents do name their children. और हम जानते हैं कि अक्सर जो एक संतान के माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वही उनके नाम रखते हैं। Here, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, is saying that you are my servant, and I am your guardian. I am taking care of you, and you are serving me. You should behave, you should live the way how I dictate terms. और यहाँ नबूकदनेस्सर कह रहे हैं कि आप मेरे सेवक हैं, मैं आपका अभिभावक हूँ, मालिक हूँ। इसलिए मेरे आप सेवक होने के नाते मेरे अनुसार चलें, इसलिए मेरे अनुसार आपका नाम होगा और मेरे सिद्धांतों पर आपको चलना पड़ेगा। So, this is the background. We need to understand that. और ये जो है पृष्ठभूमि है, इसे हमें समझना पड़ेगा। Chapter 1, verse 8 is a wonderful verse which is very, very important, every one of us to learn to by heart it. Chapter 1, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. और यहाँ दानिएल 1:8 और 9 वचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसे हमें बिल्कुल हृदय में याद रखना है। यहाँ लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। So he requested, Daniel requested to the in charge who serves them at the table, saying that we are Hebrews, we are Jews, we have a prescribed diet, what we should eat and what we should not eat. That's a command of God. And so, please permit us not to eat this food. और यहाँ दानियल अपने मन में इस चीज को प्रकट कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए उन्होंने जो उनको भोजन के लिए चुने गए खोजों के प्रधान थे, उनको कहा कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम इब्री लोग हैं, इसलिए हमारे लिए जो भोजन खाना है वो उसकी सीमा है और हम इन राजाओं के भोजन को खाकर अशुद्ध होना नहीं चाहते, इसलिए आप हमें इस प्रकार का भोजन नहीं दीजिए। So the in charge, uh, under whom all these recruitees, those are going to work in the kingdom of Nebuchadnezzar, were given command saying that they must be served with the diet what king has on his table. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो खोजों के प्रधान थे, जिनको राजा ने इनके ऊपर ठहराया था और वे राजा के अधीन थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ भोजन राजा ने ठहराया है वही भोजन आपको करना पड़ेगा। So normally what king eats is supposed to be royal food, supposed to be the best of all kinds, and people normally crave to sit at the king's table and enjoy the food taken by king. और हम देखते हैं कि जो साधारणतः जो राजा लोग भोजन करते हैं वो राजकीय भोजन होता है, बहुत अच्छा
होता है, और ऐसे सुंदर भोजन को करने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, और वो राजा के टेबल पर ऐसे भोजन को करने के लिए वो बहुत सारे लोग व्याकुल होते हैं और तड़पते भी हैं। But we wonder, these young men, they have restricted themselves not to touch the food that is offered the king has one particular reason. और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जवान हैं, इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है, और इन्होंने राजाओं के इस भोजन को छूना भी नहीं चाहते हैं। It is because whatever is offered to the king to eat is first offered to their deities. और इसका कारण ये है कि जो दानियल को जो और इनके लोगों को जो भोजन दिया जाता था, वो भोजन सबसे पहले जो बेबीलोन के जो देवी देवता थे, जो वहाँ के आराध्य थे, उन्हें पहले वो भोजन दिया जाता था। Very particularly non-vegetarian, they were offered to their idols as sacrifices, and then that is served to the king. और हम देखते हैं कि जितने भी लोग मांसाहारी होते थे, पहले उनके देवी देवताओं को पहले वो बलिदान किया जाता था, उसके बाद उन राजाओं को वो भोजन परोसा जाता था। See how these young, four boys of Judah, they knew what kind of stuff is served to the tables of king and what they should eat and what they should not eat. They are so aware of all this knowledge. और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जवान लोग थे यहाँ पर, ये बहुत ही स्पष्ट रीति से जानते थे कि इनके भोजन के लिए क्या रखा गया है, और ये क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, इसके प्रति ये लोग बहुत ही सचेत थे। And so he requests them, Sir, please allow us not to touch such and such food. इसलिए उन्होंने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि ऐसा भोजन आप हमें ना दें। Since the in charge of this team is responsible for their welfare and for their health, if any lacking is found in taking care of their health, he will be under question and he will definitely be facing consequences. और जो खोजों के प्रधान थे, जो इनके भोजन के लिए प्रधान रखे गए थे, वे इनके स्वास्थ्य के प्रति और इनके कल्याण के प्रति जिम्मेदार थे, और वो अच्छे से जानते थे कि उनको जो भी कुछ इनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए देना है वो जरूरी है। अगर वो नहीं देते तो उनका उन्हें सामना करना पड़ सकता था। Verse 10 says, the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would danger my head before the king. और यहाँ 10 वचन में लिखा है, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। Verse 11, so Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearances be examined before you, and the appearances of the young men who eat the portions of the king's delicacies, as you see fit, so deal with your servants. और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 11 वचन से 13 वचन के बीच में, तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। Here we wonder to see the wisdom of this young man. You see how he is dealing the situation. He goes to the in charge who serves the food. He says, please find 10 days, observe 10 days. If you find any difference, you please take decision of what fits the matter. और हम यहाँ इन जवानों की विशेष बुद्धि को देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कितना अच्छा एक निर्णय ले रहे हैं,
और ऐसी परिस्थितियों में एक तरीका निकाला कि इन्होंने खोजों के प्रधान के पास जाकर अपने विषय को रखा कि आप हमें 10 दिन तक ऐसा साग पात देकर हमें आप पर रख लीजिए। When we want to obey God, and when we want to uh, follow or obey what God says, we should also learn how to face that situation where pagans are involved, unbelievers are involved, and we should know how to talk to them, how to respond to the situation. और हम जानते हैं कि हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और ये लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, इसलिए इन्हें सीखना पड़ा कि विपरीत परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। जबकि ये लोग अन्य देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोगों के मध्य में थे, उनसे कैसे बात करना है और उनके बीच में कैसे रहना है, ये बातें ये लोग जान रहे थे। We find mostly, people though do not know God whom we believe, but they are still good gentlemen, they are still nice people. If you talk to them nicely, they will definitely respond nicely. और हम देखते हैं कि कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम जब उनसे बातें करते हैं, अपनी परिस्थितियों को उनके सामने रखते हैं, तो वे हमारी परिस्थिति को समझ जाते हैं। Sometimes people think that, I believe God and I'm a good gentleman, I'm wise man, and I'm this and that. And the other person who do not believe whom I believe, I think that he's not nice and he's not good, he's not gentleman, he's arrogant and things like that. और कई बार सोचते हैं हम लोग कि हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं और सब ठीक है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, इसलिए वे लोग शायद अच्छे नहीं हैं, और वे लोग सुंदर नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, वे लोग बहुत क्रोधित होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं कई बार। So we need to pray that we should know how to talk with people around us. इसलिए हमें इस बात के लिए बुद्धिमान होना है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनसे कैसे बात किया जाए। Especially when contradiction takes place, we should definitely know how to speak in the transactions to bargain the situation. We need to know how wisely we should talk. और जैसे जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो विरोधी जो समूह है वे आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसमें सावधान होना है और कि कैसे हम बात करना है और कैसे बातचीत को नियंत्रण में लेकर आना है। ये हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपने विषयों को बात करके रखना है। In verse 8, we find that Daniel purposed in his heart that he should not defile himself. और यहाँ हम 8वें वचन में देखते हैं कि दानियल ने अपने हृदय में पहले से एक अच्छा निर्णय ले लिया है कि वे राजाओं के भोजन को खा के अशुद्ध होना नहीं चाहते हैं। He purposed in his heart. उन्होंने अपने हृदय में पहले से ही कि एक उद्देश्य रख लिया है। That means he took a strong decision. He resolved himself that he should not defile himself. That is first thing we need to remember. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल के हृदय में पहले से एक मजबूत निर्णय वे ले चुके हैं कि वे अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार का एक सुंदर निर्णय वो पहले अपने हृदय में ले चुके हैं। So when I take a strong decision, when I resolve myself that I should not defile myself, I will definitely do something about it. और अगर मैंने मजबूत निर्णय ले लिया है अपने हृदय में कि मैं अशुद्ध अपने आप को नहीं करूंगा और अपने हृदय को अलग रखूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों में उन्हें एक अलग निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। It's quite obvious that king's table must lure us. King's table must attract us. I'm in a foreign land. My parents are not watching what is happening, and I can definitely take it as an opportunity to enjoy the king's delicacies. But here is these four young people who are so strong in their character. They decided themselves that they should not defile. और यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा के टेबल के पास में ये लोग उनके भोजन को देख के आकर्षित हो सकते थे, और उनके जो स्वादिष्ट भोजन को देखकर ये लोग अपने मन में लालच भी आ सकता था। ये लोग अपने घराने से, माता पिता से दूर थे, इन्हें कोई देखने वाले भी नहीं थे। ये चाहते तो राजा के टेबल का भोजन का आनंद ले सकते थे, परंतु इन चारों जवानों ने अपने हृदय को बहुत ही मजबूती से एक निर्णय में बांध रखा था
कि अपने हृदय में उन्होंने एक उद्देश्य को रखा था कि हम अपने चरित्र को खराब नहीं करेंगे और हम अपने आप को अशुद्ध भोजन खा के अशुद्ध नहीं करेंगे। नॉर्मली पीपल थिंक अरे क्या होगा खाने पीने में, वो 2-3 दिन चलेगा, इट्स ओके, वी आर स्लेव्स, वी हैव नो फ्रीडम, तो व्हाई शुड वी अननेसेसरली स्पॉइल द सिचुएशन when there is an opportunity for us to enjoy, let us enjoy, that's what people normally think. और साधारणतः लोग क्या सोचेंगे कि अरे भाई क्या होता है, कुछ दिन ऐसा भोजन खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हम तो वैसे भी गुलाम हैं। और ऐसी परिस्थिति को क्यों बिगाड़ें कि राजा के विरोध में जाने वाली बात आ जाएगी, तो क्यों ना हम ऐसे भोजन का आनंद लें, ऐसे साधारण लोग सोच सकते हैं। God understands our situation. God knows the 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 situation happening around us. Okay, God will also forgive. Why should we take risk? Things like that we normally take advantage. और लोग बोलेंगे कि परमेश्वर तो सब परिस्थिति को जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं और वो तो हमारी परिस्थिति को देख के जरूर हमें क्षमा कर देंगे, तो क्यों ना हम क्यों हम यहाँ पे बड़ा रिस्क ले लें, हम चुनौती लें, हम ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसा लोग सोच सकते हैं। Why it's not a big sin? There is no. I'm not doing any adultery or I'm not killing people. I'm not cheating people. I'm not doing it. Just a खाना पीना क्या है? The two as a slave, like that. We look for excuses. और यहाँ पे वो एक प्रकार की एक्सक्यूज दे सकते थे, या वो बोल सकते थे यार ये तो कोई बड़ा पाप तो है नहीं, हम किसी की व्यभिचार या किसी की हत्या तो कर नहीं रहे, किसी को धोखा तो दे नहीं रहे, हम एक भोजन ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी गुलाम हैं, ऐसा लोग सोच सकते थे। So this is king's command, right? This is a king commanded it, and who can plead against king? और ये तो राजा की आज्ञा है भैया, राजा की आज्ञा के विरोध में कौन जा सकता है, ऐसा वे बोल सकते थे। And Bible also says that obey your master, obey your Lord, your authority. जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि तुम अपने मालिकों के अधीन रहो और जो शासकीय अधिकारी हैं उनके तुम मानो, ऐसा तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। These young children, they decided themselves, come what may in their life, that they should not compromise and they should not disobey God because God is their number one priority. और ये जो जवान थे, इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम समझौता नहीं करेंगे और हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे और परमेश्वर को और उसकी आज्ञा को हम प्रथम स्थान पे रखेंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया। They considered the purity in their lives by obeying God, even what they eat and what they do not eat matters them mostly. और इन्होंने अपने जीवन को इतनी हालत तक शुद्ध रखा कि क्या ये खा सकते हैं और क्या ये नहीं खा सकते हैं, वहां तक इन्होंने अपने जीवन को ध्यान दिया। So you see how wisely they were bargaining with the steward who is serving them food. Please observe us just for 10 days, not even 1 month, for 10 days. Then you take whatever decision you want to take. What a pleasing request. और इन्होंने कैसे बुद्धिमानी के साथ एक निर्णय लिया, और इन्होंने खोजों के प्रधान के साथ में एक बुद्धिमानी के साथ में चर्चा की और कहा कि आप हमें 10 दिन परख लीजिए, एक महीना भी नहीं, केवल 10 दिन परख लीजिए, और इस प्रकार परख के आप हमें देख लीजिए और निर्णय ले लीजिए। ऐसा इन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ एक खोजों के प्रधान से निवेदन किया। Sometimes, godly people behave very rashly and they say, no, you do whatever you want. But हम खाते नहीं, जिसको बोलना बोलो, हम किसी को ये नहीं करते. My God says, I will obey my God. I don't care any other thing. They never behaved like that. कई बार हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं उनके व्यवहार में बड़ा वे लोग अपनी कठोरता से भी बोल सकते हैं कि मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, मैं ये सब खाना वाना नहीं खाता, मेरे को आप ऐसा क्यों बोल रहे हो खाने के लिए, ऐसा वो लोग बोल सकते हैं। परंतु दानियल और उनके मित्रों ने बड़ी नम्रता के साथ में यहाँ पर इस समय पे निर्णय लिया और बड़ी ही अपनी बातचीत नम्रता के साथ में खोजों के प्रधान के सामने रखी। They were never rude in their transactions, but they were gentle and they were very mannerful, and their lifestyle was very much appealing.
और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो दानियल और उनके दोस्तों ने जो बातचीत किया वो कठोरता से नहीं किया, परंतु उनकी बातचीत बड़ी नम्रता के साथ में और बहुत ही शालीनता के साथ में उन्होंने खोजों के प्रधान के साथ अपने व्यवहार को रखा। Here we find in verse 14, so he consented with them in this matter and tested them 10 days. और यहाँ 14 वचन में लिखा है, उनकी यह बात विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। I'm sure they must have been praying. और जरूर मैं विश्वास है कि वे लोग प्रार्थना कर रहे होंगे 10 दिन तक। Verse 15, it really shocks us. It really proves that how God control things that happens on the face of the earth. और यहाँ 15वें वचन में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। अरे भाई वो नहीं बोला विनय में you directly gone there. What I जैसा was उनका saying was different. What I was saying was this verse 15 really surprises us. And verse 15 tells us that God is in control and God controls even the minute things that happens on the face of the earth. और 15वें वचन को पढ़ने से पहले हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस संसार में सब चीज को नियंत्रण रखते हैं और इवन छोटी सी छोटी बात पर भी परमेश्वर का नियंत्रण होता है, हम इस चीज को देखते हैं। Now let me read verse 15. And at the end of 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus the और steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink and gave them vegetables. और यहाँ 15 और 16 में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। And verse 17 will surprises us more. Verse 17 says, as for these four young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. और 17वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। This portion of the scriptures categorically says that it's God who gives us health. It's God who gives us wisdom. It's God who gives us favor in all adverse circumstances and people around us. तो इन सब चीज वचनों को देखकर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, वो हमें बुद्धि देता है और तमाम विपरीत परिस्थितियों और लोगों के मध्य में हमारे प्रति अपनी फेवर को रखता है, अपने पक्ष को रखता है, हम इसे देखते हैं। Same thing can also be told in a different fashion. इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। What is the secret behind our health? हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के पीछे जो गुप्त बात क्या है। What is the secret behind the wisdom and understanding and the knowledge what we have? हमारे जो पास जो बुद्धि और समझ और ज्ञान है उसके पीछे किसका हाथ है। When you find a senior citizen or old man in enjoying a very good health, normally we ask, "Are bhai, both acha, your health is so good and you're able to do things very well. What is the secret behind it?" Normally we ask, no. और कई बार हम बहुत ही जो बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य को देखते हैं, हम बड़े आश्चर्य हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके इतने अच्छे स्वास्थ्य के पीछे क्या राज है। Normally, what kind of response we expect? और हम हमारे ज्यादातर हमारी उम्मीद क्या रहती कि वो क्या बोलेंगे। I wake up early morning. I run at least for few miles, or I do daily morning walk, daily evening walk. I eat this. I don't eat this. I do this. I don't that. Things like that. People prescribe and explain. लोग बोलेंगे कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं मीलों दौड़ता हूँ, सुबह भी चलता हूँ, शाम को चलता हूँ, मैं ये खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ। लोग ऐसा अपनी बातें बोलेंगे। I'm not saying that doing all these
those things are wrong. Yes, definitely we have to do all that. But much more than that, if you consult Daniel, he will says that if you take a strong resolution not to defile yourself by obeying God, what has been categorically prescribed to do, that is a secret. और मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सही नहीं है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। परंतु अगर हम इसी बात को दानियल से जाके पूछे तो दानियल बोलेंगे कि हमारे जीवन के अच्छे स्वास्थ्य के पीछे कारण ये है कि हम अपने हृदय में एक निर्णय लेना है कि हम इस संसार में अशुद्ध नहीं होना चाहेंगे और हम परमेश्वर के लिए शुद्ध बने रहेंगे। ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के राज हो सकता है। But if you open TV, you will find so many ads. अरे ये ऑयल मत खाओ, ये विटामिनिक फूड ले लो, your face will glow like a tube light. और जब हम टीवी खोलेंगे तो वहां पे विज्ञापन आते रहता है, ये तेल खाओ, ये विटामिन वाला चीज खाओ तो आपके चेहरे चमकेंगे ट्यूबलाइट के समान। ऐसा हम विज्ञापन देखते हैं। But Bible says, if you take a strong resolution not to defile yourself by obeying God of the Bible, and it's God who gives us health, it's God who gives us favor, it's God who gives us knowledge, skill in all literature and wisdom and understanding. तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने बाइबल में हमें पता चलता है, देखने से पता चलता है कि जब हम मजबूत निर्णय लेते हैं अपने हृदय में कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन हर हाल में करेंगे, तो यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का और परमेश्वर के प्रति हमारे पक्ष का, ज्ञान का, बुद्धि का और जितनी भी हमें जो प्रवीणता मिलती है, बुद्धि मिलता है, समझ मिलता है, उन सब का कारण यही है। Chapter 1 and verse 19, the book of Daniel. Then the king interviewed them, and among them all, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they served before king. और 19 वचन में यह लिखा है, पहले अध्याय के राजा ने उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उनमें से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। And verse 20, and in all matters of wisdom and understanding about which king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. और यह 20 और 21 में लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा इनसे पूछता था, उनमें वे राज्य के भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुशरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। Verse 21 says, Daniel continued until the first year of King Cyrus. King Cyrus is the king of Medo-Persia. और यहाँ जो लिखा है, राजा कुशरू के पहले वर्ष तक वो बने रहे। ये जो हैं वो मध्य पर्शियन के ये जो राजा थे। That means between verse 20 and verse 21, there is around more than 70 years gap. और इसका मतलब 20 और 21 वचन के मध्य में लगभग 70 वर्ष का अंतर है। Means what? Daniel continued to live a sanctified life, a life which pleased God, a life which which says that he continued to obey God, and he never defiled himself. He made his life pure before God. और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 20 से 21 वचन के बीच में 70 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब है कि दानियल ने अपने आप को इन 70 वर्षों में अपने जीवन को पवित्र रखा और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जिया, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता रहा और उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। God of the Bible is a holy God. बाइबल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। The kingdom of God is a holy kingdom. परमेश्वर का जो राज्य है वो पवित्र राज्य है। God never compromises with respect to any defilement or anything that is against God, and God will definitely reacts to that. और परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करते हैं और जो भी अशुद्ध चीजें होती है उनसे वे समझौता नहीं करते हैं, अशुद्धता की तरफ नहीं जाते हैं। 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16 says that I am holy, be ye holy.
और पहला पत्रस पहला अध्याय उसके अगर हम 15 और 16 वचन को देखें तो वहाँ लिखा है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। And the children of God cannot defile themselves by whatever means when we walk in this wicked and dark world. जबकि हम इस दुष्टता से और अंधकार से भरे हुए संसार में चलते हैं, और परमेश्वर के लोग जरूर अपने आप को पवित्र रखें और अशुद्ध ना बने। The Bible says that all people on the face of the earth are born with sinful nature. The nature of sin is within us from the very birth. बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य अपने पाप के स्वभाव के साथ ही इस संसार में पैदा होता है। So we can never make ourselves holy by whatever or tradition or whatever system we adopt. इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार की जो रीति रिवाज होते हैं, इन सब चीजों को अपना कर हम किसी भी रीति से पवित्र नहीं बन सकते। God of the whole creation is a holy God. And the Bible says, because of the nature which is sinful within us, and we commit sins, and we become slaves of sin, and we come under the judgment and wrath of God. और हम जानते हैं कि हम जो है पवित्र परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो उसके क्रोध के अधीन और उसके न्याय के अधीन हम आते हैं। According to the justice of God and the righteousness of God, all people on the face of the earth must face the punishment, must face the wrath of God, and no one can stand before God as righteous. All are sinners. और परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, और इस संसार के सभी लोग परमेश्वर के सामने एक पापी के रूप में हैं। उसके क्रोध परमेश्वर का क्रोध सभी के ऊपर है, और परमेश्वर के सामने कोई भी निर्दोष नहीं ठहर सकता। Bible says, John's Gospel, chapter 3, verse 16, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। What to believe? हमें क्या चीज पर विश्वास करना है? Whom to believe? हमें किस पर विश्वास करना है? Why should we believe? हमें क्यों विश्वास करना है? These are all the normal questions raised by many people. ये सवाल बहुत सारे साधारण लोग पूछते हैं। Bible says that God who created the whole creation became human being because God is triune God. The second person in the Trinity, Jesus Christ, came into this world as ordinary human being born to Virgin Mary. और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो त्रिएक परमेश्वर है, और त्रिएक परमेश्वर का जो द्वितीय व्यक्तित्व है, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, वे इस धरती पर आए और उन्होंने मनुष्य बनकर जन्म लिया, और कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर आए। He lived for about 33.5 years. He lived a holy and perfect life without any sin in him, without any sin he did, and he so perfectly that God accepted him as a perfect sacrifice to be offered on the cross of Calvary on behalf of all human beings. And Jesus paid price on our behalf to quench the wrath of God. और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर 33.5 साल जीवित रहे, और उन्होंने एक निर्दोष जीवन को जिया। वो निष्पाप थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, और उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया, और सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने क्रूस पर अपने आप को सभी मनुष्यों के लिए, उनके क्षमा के लिए कीमत के रूप में बलिदान कर दिया। According to the scriptures, he was buried and rose again victoriously, resurrected on the third day, defeating the powers of death, defeating the powers of the enemy, the Satan, the fallen world. And he proved that he is God, and God continues to be God, and he ascended to heaven, and he is going to come back again the second time. और प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, और उन्होंने मृत्यु को और शत्रु को और गिराए हुए तमाम शैतान के दूतों को हरा दिया, और मुर्दों में से तीसरे दिन विजयी रूप से वे जी उठे, और वो परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। The Bible says in 1 John chapter 1 and verse 9, if we confess our sins, he is just and faithful
to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने पापों को मान लें, अंगीकार कर लें, तो परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। 1 John 1:7 says, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हैं। This is the truth recorded in the Bible. This is called the gospel. This is what you have to believe. यही सच्चाई है, यही सुसमाचार है जो बाइबल में लिखा हुआ है, जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। Why should you believe? हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? Because there is no alternate. No one can forgive our sins. The Bible says all us have sinned and all are guilty before God. All are spiritually dead, and only God can help us. And that's what God did it. God became man, and He's the sacrifice. If you believe in Him, you will be forgiven. Your sins will be forgiven. The wrath of God upon you will be removed. और हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुका है और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया ताकि उन पर वे विश्वास करके इन तमाम पापों से मुक्ति पा सकें। परमेश्वर ने ये उपाय किया, इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। The Bible says in Hebrews 9:27, it is appointed unto all men to die once and then judgment. जैसा कि इब्रानियों की किताब 9 अध्याय के 27 में हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। In Hebrew and Acts chapter 4 and verse 12 says, and no one accepting Jesus can save us. No other system can helps us in saving from this eternal judgment of God. और जैसा कि प्रेरितों के काम 4:12 में हम देखते हैं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस संसार में और कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम बच सकें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जा सके। Because you are listening to the words of gospel. Maybe God loves you and God wants you to consider this truth. Maybe God wants you to hear His word and obey His word and cleanse your sins and escape the very judgment and wrath of God that should fall upon you, if not today, sometime later. और आप आज ये वचन और सुसमाचार सुन पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि परमेश्वर आपको प्रेम करते और वो चाहते हैं कि आप अपने पापों में नष्ट ना हो जाएं और उनके क्रोध और न्याय से बच जाएं। इसलिए परमेश्वर ये सुसमाचार आपको दे रहे हैं, जिस पर आप अभी नहीं तो आगे विश्वास करेंगे। There are only two destinations, केवल हमारे पास 2 ही मंजिल है, heaven and hell. या तो स्वर्ग है या तो नरक है। Heaven is the place where God dwells. Hell is the place where God does not dwell. स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर रहते हैं और नरक वो जगह है जहाँ परमेश्वर नहीं रहते हैं। Those who believe in God, they'll be in heaven. Those who do not believe in God, that means those who reject God, they'll go to hellfire. जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे और जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते अर्थात परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे वे नरक में रहेंगे। Choice is yours. चुनाव आपका है। You want to go to heaven? You need to be with God. You don't want God? You will anyway land up in hell, which is the pouring of the wrath of God upon all unbelievers, upon all those who reject Jesus Christ. और आप अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अभी परमेश्वर के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं तो वहां गिरा दिए जाएंगे, जहाँ पे तमाम पापी लोग और इस संसार के अविश्वासी लोग परमेश्वर के क्रोध का सामना करने के लिए दंडित होने के लिए नरक चले जाते हैं। Salvation by faith, not salvation by works. विश्वास के द्वारा उद्धार है, ना कि हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार है। And salvation in the name of Jesus Christ, by grace of God. और उद्धार यीशु मसीह के नाम में है और वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। This is what Bible says, and this is what even our experience says as well. यही बाइबल कहती है और यही हमारा अनुभव भी कहता है। I also have accepted Jesus Christ as my Savior,
I confessed my sins. I knew that I was a sinner. I come to understand that I have to face the judgment of God. When this gospel came to me, I accepted it, I believed it, and I repented for my sins. I confessed my sins, and Jesus cleansed me and accepted me as his dear child. और मैंने जब सुसमाचार को सुना तो मैंने विश्वास किया और मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता अपने यीशु मसीह को माना और स्वीकार किया कि प्रभु मैं एक पापी हूँ और मुझे आपके न्याय का सामना करना पड़ सकता है, मुझे बचाइए। और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा और प्रभु ने मुझे क्षमा किया, अपने पापों से मुझे, तमाम पापों से मुझे शुद्ध किया और मुझे बचाया। Please remember, heaven is a place where holy people dwell. इस बात को ध्यान रखे प्रियो कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पवित्र लोग रहते हैं। Heaven is a place where righteous people of God will dwell for eternity. और स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर के धर्मी लोग अनंत काल तक रहेंगे। Only the blood of Jesus Christ will cleanse us and keeps us and converts us from wretched sinners into the holy people of God. और केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें शुद्ध करता है और हमारे हमारे जीवन को महान पापी से वो हमें शुद्ध और पवित्र के रूप में बदल सकता है। Just as Daniel and his friends, almost 2,500 years back, they kept their life pure from all kinds of defilement. You and I are supposed to keep our life sanctified, away from all kinds of defilements. और जैसे कि आज से 2500 साल पहले दानियल और उनके मित्रों ने अपने आप को तमाम प्रकार की अशुद्धता से बचा के रखा, परमेश्वर के लिए शुद्ध रखा, वैसे आज आपको और मुझको भी हर एक पापों से बचकर अपने आप को परमेश्वर के लिए हमें शुद्ध रखना है। Those who believe in Jesus Christ, and they will keep themselves sanctified, clean from all kinds of defilements of this world, because the Bible, the Holy Spirit helps us to understand the truth, and the Holy Spirit gives us grace to live a sanctified life. और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पवित्र जीवन जीते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें मदद करती है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा वे इस संसार में शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं। Why don't you please consider this gospel? और क्यों ना हम इस सुसमाचार को समझे, स्वीकार करें। If God is leading you and guiding you and inspiring you, you better surrender yourselves to God right now. अगर परमेश्वर ने आपको अगुवाई दिया है, परमेश्वर ने आपको जीवन में बातचीत किया है, तो क्यों ना अच्छा है कि आप अपने जीवन को समर्पित करें। Jesus loves you and Jesus died for you, and he's inviting you now to join the team. प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, उन्होंने आपके लिए अपना प्राण दिया है और वो चाहते हैं कि क्यों ना आप उनके पास आके उनसे मिल लें। Let's close our eyes and let us pray. आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। I request Brother Anil Khare to kindly pray and conclude in benediction. आइए हम दुआ करें। हमारे उद्धारकर्ता अति पवित्र पिता परमेश्वर, आज की संध्या के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जब हमने आज दानियल की किताब से पढ़ा प्रभु जी, दानियल और उनके मित्रों के बारे में कि वो किस प्रकार गुलामी की अवस्था में भी आपकी आज्ञा का पालन किए और कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया और उन्होंने अपने आप को आपकी महिमा के लिए पवित्र रखा और अपने हृदय में एक अच्छा निर्णय लिया कि हमें राजा का भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार इस संसार के इन अंतिम समयों में आप दया कीजिए कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे हृदय में हम एक ऐसा निर्णय लें कि इस संसार में हम अशुद्ध और अपवित्र ना बने। पिता परमेश्वर, दया कीजिए कि जिस प्रकार दानियल और उनके साथी लोग गुलामी के राष्ट्र में भी ऊंचे पद पर पहुंच गए और उन्होंने परमेश्वर का महिमा किया और उसे प्रकट किया, उसी प्रकार हम भी इस संसार में जहाँ पे पाप है, अंधकार है, हम आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। दया कर परमेश्वर पिता, आपकी दया और अनुग्रह सहायता हमारे संग रहे प्रभु जी। आपने अभी तक दया किया, धन्यवाद। आगे भी आपके वचनों को समझने के लिए, दानियल भविष्यवक्ता की किताब का अध्ययन करने के अपने सहायता के, उसे और भी अच्छी रीति से समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। सारी बातों के लिए महिमा आपको देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज की संध्या आपने हमसे बातचीत किया।
जिस प्रकार इन जवानों के जीवन को हमने देखा, जिनके पास पाप में गिरने का बहुत सारा अवसर था, परंतु इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा। वैसे होने दीजिए कि हमारे लोग, हमारे देश, हमारे जवान लोग भी अपने आप को आपके लिए पवित्र रखने का निर्णय ले सके। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया और करुणा अनुग्रह को चाहते। धन्यवाद देते हैं आज की क्लास में हमें सबको आशीष दिया, बुद्धि दिया। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना आशीष को मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। Amen. Thank you. God bless you.